See, in space technology, which all topic you have updated the current affairs? Out of which there are one or two topic very much important for prelims. The first one is ENT, second one is Pratyush. These both are very much important. Rest all can be the part of multiple of prelims. Okay. So one by one, just go through and say which all topic you have gone through or at least have some idea. Okay. Or acha, or Vyom Mitra, what is the information by September? Okay, or Pratyush. See, this is the thing, very much important. Once you even complete the topic, you must have the idea. The way I used to say, like say for example, a topic you have completed in any of the month, say June, July, September, December, January, wherever you have completed. But the thing is that you need to regularly update because, as I have said, this is the structure of prelims question. Is clear? Any prelims question will be updated with some multiple, but the multiple will not be like simple multiple. You need just to think that whether I know or not. Not up to this. To the multiple, you need to have a contemplation that whether conceptually made correct statement into incorrect or incorrect into the correct one. Is clear? ये ध्यान रखने हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट किया गया है या इनकरेक्ट को करेक्ट. यही एनालिटिकल एप्टीट्यूड यूपीएससी के प्रीलिम्स के मल्टीपल में है. इज क्लियर? फर्स्ट विल गो थ्रू विद द टॉपिक. सी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. टू जी इथेनॉल एक्सपोर्ट. फर्स्ट बायो इथेनॉल प्लांट. Bioethanol. Have you gone through with this? Bioethanol. Ethanol we have discussed. There was a news related to bioethanol. Okay. See, in defense technology. So in alternative sources, almost all three are important. They can ask in the question of ethanol or blending or alternative sources. Okay. In defense technology. Except one or two, almost all are important. What was the news related to Agni Prime? नहीं, एंटी बैलिस्टिक नहीं है. अग्नि प्राइम. हाँ ठीक है. व्हाट वाज द न्यूज बाय सितंबर? नहीं. हाँ, वेरी गुड. यही न्यूज है. गुड. क्लियर. अग्नि प्राइम वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास. You can recall we have discussed that Agni Prime is the improved version of Agni 1 and Agni 2. It will take place Agni 1 and Agni 2 because Agni 1 and Agni 2 is made up of 89 and 99 respectively. Okay. Drone wall. ऐसा कोई न्यूज? This one, autonomous surface ships.
ये तो पता होगा लास्ट. Which class of ship is the last one? क्लास क्या है शिप के? क्लास क्या है? Like which type of ship? Hmm? To some extent you are correct. Think on it. किस तरह का शिप है ये? Okay. See, in information technology, this one is very much important. (32-bit) 16 था वो. 1632. ठीक है. क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम? आई हैव सेड करंट अफेयर्स का क्या मतलब है? ये करंट अफेयर्स न्यूज में था, हमने इसे अपडेट कर लिया, दैट्स इट. ये तो हो गया करंट अफेयर्स का अपडेशन. बट करंट अफेयर्स में वर्क कैसे करने हैं? हाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम? सो माय क्वेश्चन इज कि जो भी न्यूज है, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रीलिम्स मल्टीपल? ये क्वेश्चन है. क्या न्यूज है दैट वी विल सी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रीलिम्स में ये कैसे मल्टीपल का पार्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड बायोटेक्नोलॉजी, एआई, अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, डेटा लैब्स बनाने हैं. बायोटेक्नोलॉजी, both vaccine are very much important. Have you gone through with the first one? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन न्यूज है ये. वेरी गुड. मलेरिया की ही है. ठीक है. हाँ, गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म्स को भी लाइसेंस दिया है टू दिस मलेरिया वैक्सीन, बट मलेरिया की वैक्सीन पहले से भी है. सो द पॉइंट इज क्लियर. एग्जाम में ये कैसे इंपॉर्टेंट है? इस वैक्सीन में ऐसा क्या है, सच क्लेम बाय विच दिस वैक्सीन इज मच मोर प्रिफर्ड एंड इवन गिव द लाइसेंस टू यूटिलाइज. क्लियर? क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो विल सी वन बाय वन. निसार, व्हाट इज निसार? वेरी गुड. क्या है ये? भेज चुके हैं. नहीं नहीं, सन सिंक्रोनस में. ठीक है. वेरी सिंपल. सिंथेटिक अपर्चर रडार. ठीक है. वर्क ऑफ रिमोट सेंसिंग, और रिमोट सेंसिंग का वर्क कहां करते हैं? एलईओ में. पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. क्लियर? व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद जियो सिंक्रोनस? बिकॉज दिस इज लॉन्च्ड बाय जीएसएलवी. ठीक है. नाउ सी, the mission was launched, it started working. We have discussed that when a mission is launched, a mission objective is say study, observation, data collection. It takes time. We can't wait for say 10-year, 20-year, that when the entire data will be collected, then the mission is said to be successful and all. A mission technically is said to be successful if all the scientific instruments on board, if it started sending the healthy signals. Clear? So a mission launched by July. By September, so many data collection happened. Utilization of all such data collection. Now, first radar image of Earth's surface is made. Is clear? Now you can understand. This is just 1 or 2 line information. This information can be asked in this way, just to 1 line of multiple. Clear? So, in the regular updation, as you need to update about the NISAR, what is NISAR, what is its objective, how it will work. This is the part of the class lecture. Clear? Now, regarding updation, you are supposed to update just one thing, that the data collected from NISAR is utilized in the mapping of radar imaging of Earth surface. Is clear? Second,
Astrosat completes decade of operation. This information is also important. Almost 10 years, Astrosat have worked. रख दीजिए यहाँ. So see, Astrosat क्या है? Those who have completed space technology. What is Astrosat? Good. Observatory है. और ठीक है, लियो में और इसमें यूनिक क्या है? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सी देयर आर सो मेनी ऑब्जर्वेटरी. इस ऑब्जर्वेटरी ने 10 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं. क्लियर? सी, ऑब्जर्वेटरी मीन्स टू स्टडी द यूनिवर्स. क्लियर? फर्स्ट थिंग इज दिस इज इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी. ये तो ठीक है, बट इट्स सो यूनिक in terms of observatory missions in the world. Why so unique? Because this is to work in multi-wavelength. Is clear? So is unique. Generally, any space mission, any satellite launches generally happens to be of 5 year to 10 year. Clear? Minimum of 5-year data collection to any satellite, to any space mission results in coming to some conclusion. For example, like Earth's surface is mapped, some exoplanet is observed in universe. Clear? So minimum of 5 years is the general trend a satellite or a space mission works. Because any space mission or satellite is powered by lithium ion batteries. Almost these are the lifetime also of the battery source. But now this mission have almost completed 10 years. Point number 1. Point number 2. This mission, why is important? Because in the regular lectures we have discussed that how observatory is important for humans. Is clear? Now, talking about India, this is India's first and that too unique multi-wavelength space observatory. Point number 1. Point number 2, India also have launched one solar observatory, that is Aditya L1. Is clear? Observatory, from the name itself is clear. Observation. Clear? Observation. And the technical meaning of observation in space technology is imaging. Clear? So, those who haven't completed, a little bit challenging, but when we'll complete, it will be clear to you. So, very simple. Observation का मतलब देखना. जैसे we human being observe anything from the eyes. Clear? In the same way, observation of universe, talking about entire universe or talking about Aditya L1 only, sun. So the way we human being observe something from our eye, and our eye uses visible spectrum. Clear? हम visible spectrum को use करके reflection से किसी भी object को देखते हैं. In the same way, we uses visible spectrum to observe anything. In the same way, satellite or scientific instrument uses mainly 3: infrared, visible, ultraviolet. Clear? So very simple. Observation का मतलब जैसे हमारी eyes. Our eyes naturally works in the visible spectrum by reflection. Clear? In the same way, like our eye,
the scientific instrument for observation, whatever is, space mission है, satellite है, is made into generally three different or three combined. If combined, it is called as multi. Is clear? So what is observatory? Very simple. Scientific instrument that works in infrared, visible or ultraviolet, and this technical way of observation is called as imaging. Clear? Technically called as spectral imaging. जैसे simply we call image as digital image. Clear? So this is called as spectral image. Simple. Now, so regarding observatory, we have discussed that how prelims question is important. Regarding observatory, so far India have reached to this. India ने ये सब किया है, multi wavelength, Aditya L1, but internationally this space mission technology have gone so far, and other space agencies like NASA have even launched observatory in the Lagrange's point, L1, L2. Clear? So the way this is launched in L1, one of the NASA's observatory launched in L2, that is James Webb Space Telescope. Is clear? So very simple. Observatory, what is observatory is clear to you? Second, observatories are mainly placed in LEO, but with so advanced technique, observatory now find places in the Lagrangian point. So observatory question is very much expected in prelims in coming days. In the prelims regular classes, I'll be discussing the same again. So observatory question can be asked in consider observatory. Is clear? Or they can give you some name also. Consider James Webb Space Telescope. Now, they can make you confused. I have said, prelims, the main technique you need to develop is incorrect ko correct or correct ko incorrect. You need to develop the idea conceptually to find out the same. So, observatory is very much important. In all this regard, a question can be asked as observatory hai kya? India's position. Clear? They can ask you, in order to make confuse this current statement, as India have completed first observatory of decade of operation, they can ask you like one of India's observatory that completed decade of launch is working for solar observatory. Incorrect है? Clear? So you can understand, अगर running eyes में if just you will miss the word solar, clear, or if you have not the conceptual clarity, so उससे क्या लगेगा, यूनिवर्स का मतलब सन का भी तो ऑब्जर्वेशन है. यू आर गेटिंग द थिंग. यही प्रीलिम्स है. इज क्लियर? सो विद द एंटायर कॉन्सेप्ट ये देखना है. आई हैव सेड मेनी टाइम्स दैट करंट इंफॉर्मेशन ये है, कॉन्सेप्ट को लिंक करके यू हैव टू वर्क आउट दैट हाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. इसीलिए द मोमेंट यू रीड एनी करंट इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज कि करंट इंफॉर्मेशन क्या है, हमने कर लिया अपडेट, ठीक है. आफ्टर विच योर ऑब्जेक्टिव इज कि ये प्रीलिम्स में कैसे आएगा, यू नीड टू वर्क आउट. इज क्लियर? व्योम मित्र, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट व्योम मित्र? क्या है ये और क्या रिलेटेड है? यही क्वेश्चन है. क्या रिलेटेड है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाया गया है, क्या इंपॉर्टेंस है? व्योम मित्र. See, now we'll start after nanotechnology robotics. Clear?
तो वहां ये क्लियर होगा व्हाट इज रोबोटिक्स। क्लियर? सो फार जस्ट नाउ अंडरस्टैंड, व्योम मित्र एक रोबोट है। क्लियर? एक रोबोट है। टेक्निकली व्हाट इज रोबोट, how robotics technology is utilized in various application, say for example in space technology, that we'll be discussing in the topic robotics and AI. Now just understand, robot human being की तरह वर्क करने वाला एक डिवाइस है, सिंपल। सो इज कॉल्ड एज ह्यूमनॉइड रोबोट। इज क्लियर? अगर वो इट सीम्स सिमिलर टू मेल, so called male humanoid, similar to female, so called female humanoid. Clear? You know, Gaganyaan is India's first human space mission planned. So in order to launch human being to space now is very challenging thing. So many things need to be worked out. For example, how radiation affects, how our vehicle works. There are so many technicalities that need to be monitored because our space scientists and our space agencies are not having prior experiences of launching human to space because it is the first time. Second thing, while launching technical instruments or a space mission in space and launching human being, you can understand so challenging thing. Might, if not the thing will not be evaluated properly, might be there can have some accident. Clear? So keeping in mind all this, just in one line, have in mind, ISRO have decided कि हम launch के पहले, in order to monitor everything, we will launch Vyom Mitra. Is clear? So very simple. गगनयान में ह्यूमन बीइंग को जाना है, ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट लॉन्च से लेकर वापस आने तक होगा, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एंटायर थिंग, उस इफेक्ट को हम रोबोटिक डिवाइस पे स्टडी करेंगे। इज क्लियर? और उस स्टडी के बेसिस पे नाउ वी विल अपग्रेड आवर टेक्निकल मिशन। इज क्लियर? सो वेरी सिंपल, व्योम मित्र एक रोबोट है। क्लियर? गगनयान में इसे सेंड करना है। सितंबर इसरो हैव अनाउंस्ड कि बाय दिसंबर इट विल बी कंप्लीटिंग इट्स प्रीकर्सर एक्सपेरिमेंट गगनयान के पहले। क्लियर? और जितने भी इफेक्ट हम फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट पे ऑब्जर्व करेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल शॉर्ट आउट द टेक्निकलिटीज in the upcoming Gaganyaan mission. Is clear? ENT, very important information. Any idea? बहुत important information है ये. See, इसी से related, but they can ask you differently. See, observatory means universe को observe करना. Clear? You can understand when we say this word universe, is not a physical body. ऐसा तो नहीं है when we say earth, planet, ये कोई physical body है. But when we say the word universe, you can understand we are talking everything as according to basic physics. Fundamental particle makes the matter. ठीक है? According to physics, फंडामेंटल पार्टिकल्स जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स ने क्या बनाया? मैटर। एंड वी ऑब्जर्व मैटर इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो अकॉर्डिंग टू आवर साइंसेस, फिजिक्स, इंटायर पार्टिकल स्टडी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज कुछ भी बना है उसका कंपोजिशन फंडामेंटल पार्टिकल ही है। इज क्लियर? सो यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स की स्टडी करना है, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है, तो टेक्निकली व्हाट वी नीड टू से, हम यूनिवर्स के फेनोमेनन को देख रहे हैं। क्लियर? इस देखने में हमें समझना है कि यूनिवर्स, थ्री क्वेश्चन, यूनिवर्स इवॉल्व कैसे हुआ? क्लियर? यूनिवर्स इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब यूनिवर्स का
पास्ट इवॉल्व के बाद प्रेजेंट स्टेटस यूनिवर्स का क्या है? बहुत सारी थ्योरी है. सम थ्योरी सेज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. ठीक है, कुछ थ्योरी को मानते हैं, कुछ थ्योरिटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल है. जो भी है, इस प्रेजेंट से कुछ फ्यूचर की तरफ यूनिवर्स जा रहा है. अगर एक्सपेंड कर रहा है तो दैट इज वन मोर केस. सो वेरी सिंपल, टू थिंग आई हैव सेड. व्हेन वी से यूनिवर्स स्टडी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? थ्री थिंग. यूनिवर्स का पास्ट इवॉल्व कैसे हुआ, यूनिवर्स का प्रेजेंट है क्या, और जो भी प्रेजेंट है उससे यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा. 3 पॉइंट. ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है. अब टेक्निकली हाउ वी आर परफॉर्मिंग द स्टडी, एज वी नो, कुछ भी यूनिवर्स में एनी मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल. सो व्हेन वी से कि हमने कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड इन स्पेस टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, हम करते क्या है? वी आर ऑब्जर्विंग पार्टिकल्स. क्लियर? अब इसी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने में, यू कैन रिकॉल इन लास्ट 1 or 2 करंट अफेयर सेशन वी हैव डिस्कस्ड समथिंग लाइक CME. गुड, याद है क्या है? SPE, सोलर प्रोटॉन इवेंट. मतलब वेरी सिंपल, ये सब इवेंट्स हमने स्पेस मिशन की स्टडी से ऑब्जर्व किया. इस स्टडी में सब में एक बात कॉमन है, दैट यहां भी पार्टिकल निकल रहा है, यहां भी पार्टिकल निकल रहा है, कहीं चार्ज पार्टिकल, कहीं प्रोटॉन, कहीं कोई पार्टिकल. सो वन थिंग इज क्लियर कि हमें पार्टिकल एज फंडामेंटल, तो हमें पार्टिकल की स्टडी ही करनी है. ठीक है, इसी स्टडी में टाइम एंड अगेन वी कम आउट विथ सो मेनी फेनोमेना. क्लियर? रिसेंटली one of the new phenomenon is observed, extreme nuclear transient. So you can understand, जितनी अधिक हम यूनिवर्स के फेनोमेनन को, इवेंट्स को समझेंगे, जितना एडवांस हमारा ऑब्जर्वेटरी होगा, उतना अधिक हम यूनिवर्स की स्टडी की तरफ जा रहे हैं. क्लियर? अब इस स्टडी में नाउ वी हैव कम टू नो अ न्यू इवेंट. क्या पता चला? सी, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट. नाउ इस इवेंट में हमें क्या पता चला? सी, ऑलमोस्ट 3 times द मास ऑफ सन. क्लियर? सोलर मास से ऑलमोस्ट 3 times जो भी स्टार्स है. सो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज द इवेंट. क्लियर? एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट, सन से ऑलमोस्ट 3 times मैसिव स्टार्स. क्लियर? सो स्टार्स इक्वल टू 3 times द सोलर मास. ऐसे स्टार्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का इफेक्ट होता है. क्लियर? ब्लैक होल्स, यू नो, ब्लैक होल एक इवेंट है, एक फेनोमेनन है, वेयर इवन लाइट फेल्स टू कम. सिंपल. ऐसे स्टार्स में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ब्लैक होल का इफेक्ट होता है. क्लियर? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इस इफेक्ट में विजिबल क्या है? टाइडल फोर्सेस. क्लियर? टाइडल फोर्सेस. टाइडल फोर्सेस फर्स्ट क्या हुआ? ब्लैक होल के इंफ्लुएंस में ये आया. क्लियर? सेकेंड, टाइडल फोर्स ने इतने मैसिव स्टार्स को कॉम्प्रेस कर दिया. क्लियर? पहला इफेक्ट क्या हुआ? ब्लैक होल के इंफ्लुएंस में आया. सेकेंड, टाइडल फोर्स ने क्या किया? कॉम्प्रेस. यू कैन अंडरस्टैंड, इतने मैसिव स्टार्स को टाइडल फोर्स ने कॉम्प्रेस कर दिया. कॉम्प्रेस करने से क्या हुआ? एक स्टार इतना कॉम्प्रेस हो गया लाइक अ थिन
लाइक ये था एक स्टार, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टार है, ये इतना कॉम्प्रेस हो गया दैट स्टार्टेड कमिंग लाइक अ न्यूक्लियर वेव. क्लियर? बट यू कैन अंडरस्टैंड हैविंग वेरी हाई रेडिएशनल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक स्टार कॉम्प्रेस होके एक न्यूक्लियर इवेंट की तरह हो गया है. इज क्लियर? सो द एनर्जी सोर्स that is coming out is electromagnetic radiation. Clear? Electromagnetic radiation. So try to memorize. एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट क्या है? यूनिवर्स की स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया इवेंट ऑब्जर्व किया है. ठीक है? इस इवेंट में क्या ऑब्जर्व किया है? बहुत ही मैसिव स्टार्स, उसके क्लासिफिकेशन बताई है कि ऐसे स्टार्स जिसका मास ऑलमोस्ट सन के मास का 3 टाइम्स है. क्लियर? जब वो ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के इंफ्लुएंस में आता है, देन टाइडल फोर्स के एक्ट करने के कारण उतने मैसिव स्टार्स, इस फोर्स का और ब्लैक होल का इंफ्लुएंस ऐसा है कि मैसिव स्टार कॉम्प्रेस हो गया और एक लाइट रेज जैसा कुछ निकला. क्लियर? वो जो लाइट रे है वो दिख तो रहा है कि कोई लाइट आ रही है, लेकिन वो लाइट नहीं है. वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है. एक्सट्रीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट. इज क्लियर? आ गया समझ? नाउ they can make you confuse इस तरह से. there are 2-3 important event, और ये जितने भी इवेंट है happens to be in recent news, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, SPE, ENT, ये सब है. क्लियर? they can make you confuse. now I'm coming कि अभी एग्जाम में कैसे आएगा. ENT is a event which involves release of charge particle. सही या गलत? ENT is a event which involves release of very high charge particle. सही या गलत? ENT is a event which involves release of very high charge particles. सही या गलत? थोड़ा सोचने हैं, इतना जल्दी आंसर नहीं करना है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने अपना पूरा नॉलेज लगा के वो स्टेटमेंट बनाया है. इज नॉट सो इजी. ENT एक इवेंट है जहां एक्सट्रीम चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं. सही या गलत? सबको सही लग रहा है. गलत है ना ये? एक्सट्रीम वर्ड से सही लग रहा है. यही है यूपीएससी प्रीलिम्स. एक्सट्रीम चार्ज पार्टिकल तो नहीं निकल रहे ना. निकल क्या रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यू कैन अंडरस्टैंड. चार्ज पार्टिकल तो फंडामेंटल है ही, पार्टिकल तो सब कुछ में है, बट हमने ऑब्जर्व पार्टिकल को नहीं किया है. हमने ऑब्जर्व क्या किया है? यू आर गेटिंग दिस थिंग? दिस इज द थिंग यू नीड टू डेवलप. ENT came in the newspaper. ठीक है, पढ़ लिया हमने, समझ आ गया कि ENT है क्या. बट पढ़ना समझना इज द करेंट अपडेशन. अब प्रीलिम्स क्या है? वो पढ़ने समझने से रिलेटेड नहीं है. प्रीलिम्स है कि कॉन्सेप्चुअली हाउ क्लियर इज योर कॉन्सेप्ट. इसी को वो एक स्टेटमेंट में पूछेंगे. इज क्लियर? नाउ व्हाई हैव टेकन 2 एग्जांपल. Why you get confused? Because you will think कि चार्ज पार्टिकल तो हमने पढ़ा ही है. चार्ज पार्टिकल को हमने कहां ऑब्जर्व किया है? कोरोनल मास इजेक्शन. चार्ज पार्टिकल प्लस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सोलर प्रोटोन इवेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया? डायरेक्टली प्रोटोन को ऑब्जर्व किया. सी, टॉकिंग अबाउट all three happens to be in the form of radiation. है all three radiation. क्यों? Because all three में चार्ज पार्टिकल्स ही है. बट ऑब्जर्वेशन इसकी कैसे हुई है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे हुई है? आयोनाइज्ड पार्टिकल प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे हुई है? प्रोटॉन। इज क्लियर? सो द पॉइंट इज क्लियर। ईएनटी क्या है, एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर? इसी से रिलेटेड एक इवेंट है दैट वाज इन द न्यूज अ लिटिल बिट लेटर, GRB, गामा रे बस्ट। क्लियर? ये एक तरह का एक्सप्लोजन है, क्लियर? एक तरह का एक्सप्लोजन है, सो इज कॉल्ड एज बस्ट। इस एक्सप्लोजन में क्या हमने ऑब्जर्व किया? गामा रे, which is so far high frequency rays observed in our universe having radiational properties. Is clear? So ऐसे जितने भी इंफॉर्मेशन है they can ask you in one single question. Is clear? ठीक है, आ गया समझ? Now the next one is, ये क्या है? SSLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पहले ये न्यूज क्या है, सेकंड हाउ दिस विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। क्या न्यूज है ये? Those who have covered space technology, ये न्यूज मिला है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव डिस्कस इन द रेगुलर क्लास ऑल्सो। And sometimes what happen, like when even any topic used to go on in class, even I used to refer कि आज ये न्यूज़पेपर में आया था, so we have discussed somewhere by September, but those who are completing the topics are also not correlating with the ongoing lectures, okay? तो ये ध्यान रखने ऐसी। If say I will say this is the news, अगर हमने न्यूज बता दिया कि इसरो ने हॉल के साथ एसएसएलवी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का एग्रीमेंट किया है, ठीक है, क्लियर? सी, इसरो ने हॉल के साथ एसएसएलवी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट किया है, ये न्यूज है, ठीक है। इफ आई विल आस्क कि ये न्यूज एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट है, किस एस्पेक्ट में दे कैन आस्क यू इन एग्जाम टू दिस न्यूज, अगर हम कहेंगे एक वर्ड में बताने, इन वन वर्ड, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेंस के लिए, ऐसे एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? सोचना है थोड़ा। नहीं, ये पब्लिक सेक्टर ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्लियर? ये जनरली डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग की बॉडी है, क्लियर? जैसे जितने भी तेजस और ये सब हम लोगों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया है, इज मेड बाय हॉल, ओके? नहीं, डिफेंस में तो नहीं करेंगे ना, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियाज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, हैंडल्ड डिफरेंटली, वन बाय इसरो, वन बाय डीआरडीओ, क्लियर? और क्या होगा? This question is a little bit challenging for you because you have not covered space technology, but those who have covered, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि ये सिग्निफिकेंस क्यों है, इस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, एसएसएलवी क्या है? व्हाट इज एसएसएलवी? दोज हु हैव कंप्लीटेड स्पेस टेक्नोलॉजी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? बस फुल फॉर्म पता है। ओके, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? वेरी गुड। दोनों 500 kg, 500 किलोमीटर। व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? हाँ, वेरी गुड, छोटी, बट उस छोटी का क्या ऑब्जेक्टिव था? इंडिया इंट्रोड्यूस डाइवर्सिफिकेशन। By introducing diversification, private players, commercial players are now allowed to work in all spheres of space technology.
क्लियर? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड ऑब्जेक्टिव, अब ऐसा करने के लिए वी नीड टू टेक ऑन बोर्ड स्कूल, colleges, universities, by which if the research will be progressing, then only we will have pool of scientists also. So you can understand, overall, just in one word, I have said कि एक वर्ड में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? डाइवर्सिफिकेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम को डाइवर्सिफाई कर दिया. फर्स्ट announcement made in 2019 union budget. NSIL was established. Second, year 2023, last year, Government of India have came out with India's space policy. Last year it is implemented. इस दोनों पॉलिसी और इस बॉडी ने गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को 100% FDI के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर ओपन कर दिया. क्लियर? बट ये ओपनिंग टू एस्पेक्ट में हुई है. फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स ऑल हैव टू वर्क इन स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है. क्लियर? बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेसिंग इंडियाज साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस टेक्नोलॉजी. क्लियर? और इसी तरह के प्रोग्रेस में SSLV was first used in the launch of आजादी सैट. याद आया आजादी सैट? What is आजादी सैट? हाँ, गुड. स्टूडेंट और क्या? हाँ, वेरी गुड. 750 गर्ल्स स्टूडेंट selected from 75 rural government school. So you can understand, SSLV का ऑब्जेक्टिव है दो. फर्स्ट, इंडिया में रिसर्च को प्रोग्रेस करना. और रिसर्च कब प्रोग्रेसिव होगा? जब हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड टेक्निकलिटीज पे वर्क करें. बट ऐसा करने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे अब स्कूल्स में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट करने हैं, तो क्या करना होगा हमें? स्कूल के लैब्स में वो फैसिलिटीज देनी होगी ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल में सैटेलाइट बना सके, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना सके, या सैटेलाइट या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या स्पेस मिशन का कोई कंपोनेंट बना सके. जब वो ऐसा कर लेंगे, अब हमें वो लॉन्च भी करना होगा. इससे पता चलेगा उन्होंने काम अपना सही किया या नहीं. ठीक है? अब लॉन्च करने के लिए हम PSLV, GSLV को तो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज PSLV, GSLV इज मेंट फॉर आवर स्पेस प्रोग्राम. कॉस्टली भी बहुत है. इसलिए फर्स्ट पॉइंट रिसर्च एंड सेकेंड पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन के लिए SSLV वाज अप्रूव्ड. दैट इज व्हाई नेम्ड एज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अब SSLV का entire development was in the hands of ISRO. Clear? 2022, SSLV successfully developed, made its first launch with Ajadi Sat 1. ये तो हो गया. अब 2022 से 2025, 3 years, ISRO developed SSLV for the two objectives. First is diversification, second is research. ठीक है? Now, after almost this 3-year development of SSLV, now ISRO have decided कि अब ये रिसर्च को और प्रोग्रेसिव करते हैं. आई हैव सेड टू थिंग. इंडियन स्पेस पॉलिसी ने पूरे स्पेस सेक्टर को खोल दिया 100% FDI के साथ. सो अब रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन को प्रोग्रेसिव करने के लिए नाउ SSLV टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफर्ड फॉर हॉल. अब हॉल SSLV बनाएगी, एंड एट द सेम टाइम द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज मेड फॉर वेरियस प्राइवेट प्लेयर्स. इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा SSLV का प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च प्रोग्रेसिव होगा, ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चेस होंगे. इज क्लियर? सो इस सिग्निफिकेंस इज रिलेटेड टू डाइवर्सिफिकेशन, privatization, progressing the research.
So they will not ask you such a statement in the prelims. They will ask you that recently SSLV technology transfer made will boost India's ongoing diversification, comma, progressive research in the space technology sector. Is clear? So you need to understand that उस स्टेटमेंट में किस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है. Is clear? Now, एक रिपोर्ट, इंडियाज स्पेस इकोनॉमी रिपोर्ट, is recently released. ये रिपोर्ट came in the newspaper. इस रिपोर्ट में there are some 1 or 2 point which is very much important for exam. Is clear? ये रिपोर्ट कहीं मिला न्यूज़पेपर में? See, 2 point that is very much important. What is the percentage of India's space sector in global space economy? अभी प्रेजेंट क्या इंडिया का स्टेटस है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में? We have discussed in regular class. 2%. Clear? And even entire opening of space sector के बाद till 2022 Indian space economy is worth of approx 8.4 US billion dollar. Is clear? In this report, it is presented that with the several moves of the government, और अभी अभी हमने बताया गवर्नमेंट ने क्या क्या मूव लिए हैं. 2019 यूनियन बजट NSIL, 2020 इन स्पेस and 2023 इंडियन स्पेस पॉलिसी. Recent step, 1000 crore वेंचर कैपिटल फंड is allowed in स्पेस सेक्टर. ये सब स्टेप से 1 स्टार्टअप से 200 स्टार्टअप is now working in space technology. We have discussed about the private launch vehicle, private 3D engine, this all that is developed by startups and private space agencies. So working on all such aspect is clear. In this report, it is projected that by 2033, India will have 5 times increase in the revenue generation in global space economy. Is clear? अभी 8 है तो 5 times क्या होगा? Approximately 40 to 44 billion dollar. Is clear? And second is 2% से 8% पे 2033 तक पहुंचने का टारगेट. Is clear? So 2 point is important. Now Pratyush. Any idea about Pratyush? Very much important for prelims. See, Pratyush बहुत ही important है because एक नया concept है ये. Clear? See, any new concept happens to be very much important for prelims. See, यूनिवर्स की स्टडी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जर्वेटरी. ठीक है. ऑब्जर्वेटरी, हाउ इट वर्क्स? ऑब्जर्वेशन टू यूनिवर्स. नाउ बहुत लंबे टाइम से हम ये कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर से इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज आर वर्किंग, so many data are collected, but still we have not come out with any such concrete information. So time and again, with the vast study of space scientists and physicists, many such concepts are proposed कि ये तो ठीक है ऑब्जर्वेशन करना, बहुत सारे इवेंट्स का पता लगाना, बट टाइम एंड अगेन स्पेस साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट वर्क कि हम और भी कुछ टेक्निक ऐसा लाएं जिससे हम यूनिवर्स की स्टडी को कर पाए. इज क्लियर? यूनिवर्स की स्टडी को कर पाए. सो आई एम टॉकिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. यूनिवर्स की स्टडी टेक्निकली करने का दिस इज द वे, बट एक नया कॉन्सेप्ट फिजिसिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है. इस कॉन्सेप्ट में क्या प्रपोज किया है? फर्स्ट अंडरस्टैंड. जैसे हाइड्रोजन is the most abundant in our universe. Clear? Most abundant.
और यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट का मतलब कैन बी सेड इन अदर वर्ड्स कि यूनिवर्स की इस तीनों स्टेज में हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है. करेक्ट? यू कैन अंडरस्टैंड क्यों. अबंडेंट भी है. स्टार्स के फेनोमेनन में हाइड्रोजन प्लेज द रोल, न्यूक्लियर फ्यूजन. सो एक नया कॉन्सेप्ट इन विच इट इज सेड कि हाइड्रोजन एटम्स for a longer period of time are releasing some signals. Signals का मतलब हाइड्रोजन एटम से जो कुछ भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी रिलीज हो रहा है वो एक वेव की तरह है. एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. व्हाट इज वेव? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वेव. तो जो कुछ भी निकल रहा है वो एक वेव की तरह है और वेव को हम कहते हैं रेडियो वेव्स. क्लियर? तो इसे कह देते हैं रेडियो सिग्नल. सिंपल. हाइड्रोजन एटम से फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज कमिंग आउट? वेव, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. या हो सकता है वो हाइड्रोजन का ही स्ट्रीम हो, पार्टिकल्स का. ऐसे वेव्स को हमने क्या कहा? रेडियो सिग्नल. क्लियर? सो वेरी सिंपल. हाइड्रोजन एटम्स over a period of time is releasing radio signals. Clear? ये ऐसा नहीं कि केवल हाइड्रोजन ये कर रहा है. There are many such materials that can do the same. हमारा इंटरेस्ट हाइड्रोजन में ही क्यों है? Because most abundant and hydrogen is playing role in all the star systems in our universe. और यूनिवर्स को समझने के लिए स्टार सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए सो साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड वन थिंग कि अगर हमने हाइड्रोजन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया, क्लियर, उसकी स्टडी की तो हमें पता चलेगा कि बिग बैंग के एग्जैक्टली बाद क्या हुआ था. अंडरस्टैंड? यूनिवर्स की स्टडी का क्या मतलब है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट का मतलब कि हाउ यूनिवर्स इवॉल्व. ठीक है. अब साइंटिस्ट ने क्या बताया कि हाइड्रोजन से जो रेडियो सिग्नल्स लंबे टाइम से रिलीज हो रहे हैं, अगर हमने उन सब रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया तो हमें क्या पता चलेगा कि यूनिवर्स इवॉल्व कैसे हुआ है. क्लियर? मींस जस्ट आफ्टर द बिग बैंग यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है. हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्ट अबंडेंट. क्लियर? अब इस पूरे एक नया कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट ने प्रपोज कर दिया. अब इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करें? यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स क्या है? इज अ कॉन्सेप्ट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज द इंप्लीमेंटेशन. सो फिजिसिस्ट हैव प्रेजेंटेड अ कॉन्सेप्ट that radio signals emitted from hydrogen atoms, if will be captured, will reveal important information about how universe evolved just after the Big Bang. Clear? Now, ISRO have proposed that we will implement this. कैसे? So ISRO have proposed कि हमें क्या ट्रैक करने हैं? रेडियो सिग्नल. सो इसरो प्रपोज्ड वन इंस्ट्रूमेंट, नेम इट एज रेडियोमीटर. इसे हम सैटेलाइट भी नहीं कहेंगे, ऑर्बिटर भी नहीं कहेंगे, स्पेस मिशन भी नहीं कहेंगे. इसरो कॉल्ड इट एज रेडियोमीटर. ठीक है. इसरो हैव मेड दिस रेडियोमीटर एंड दिस रेडियोमीटर इज टेक्निकली नेम्ड एज प्रोबिंग reionization of universe. Clear? So named it as Pratyush. ठीक है. What is Pratyush? Is a radiometer. करने क्या है? हाइड्रोजन एटम से रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करने हैं. क्लियर? ये हो गया. अब ये बेस्ट वर्क कहां करेगा? ये तो चैलेंज है. जनरली हम ऑब्जर्वेटरी को कहां रखते हैं? एलईओ में.
but according to several studies it is proposed it will be better to placed in lunar orbit. अगर हम इसे मून के ऑर्बिट में रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन कॉन्क्रीट होगा. सो इट इज डिसाइडेड दैट प्रत्युष विल बी प्लेस्ड इन नॉट इन अर्थ ऑर्बिट, इट विल बी प्लेस्ड इन lunar orbit. Is clear? So you can understand. अब एग्जाम में how is important? They can make you confuse that Pratyush is an observatory placed in lunar orbit to observe radio signals from hydrogen. पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है एक वर्ड को छोड़ के, is observatory. The point is clear? Is radiometer. Clear? Second statement, Pratyush will be working like a orbiter. Correct या incorrect? Pratyush will be working like a orbiter. इतना जल्दी आंसर नहीं करने हैं. ओके, आई हैव सेड आंसर करने में थोड़ा टाइम लेना है. अगर पता भी चल गया है कि यही आंसर है, फिर भी प्रोसेसिंग करनी है. क्लियर? इज करेक्ट. सी व्हाट इज ऑर्बिटर? जो ऑर्बिट में मूव करके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वर्क करे, तो ये वही तो करेगा. यू आर गेटिंग दिस थिंग? रेडियोमीटर कैन ऑल्सो बी सेड एज ऑर्बिटर. करेक्ट एंड करेक्ट? रेडियो करेक्ट. इज क्लियर? ये ध्यान रखने हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज करंट अपडेट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर एग्जाम. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये दोनों दो चीज है. करंट अफेयर्स में यू हैव रीड एवरीथिंग अबाउट प्रत्युष, बट दैट एवरीथिंग इज नॉट आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स. ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं है. प्रीलिम्स के क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है? वो प्रत्युष इंफॉर्मेशन को जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके एक स्टेटमेंट बना सके. दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स. सी अब ये जो क्वेश्चन है, प्रत्युष का पूरा ऑब्जेक्टिव, प्रत्युष विल वर्क टू ऑब्जर्व रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स like an orbiter. You can understand? ये पूरे स्टेटमेंट में सोचना केवल कहां था? ऑर्बिटर पर. So you can understand? इस स्टेटमेंट से the subject experts have tested how clear is your basic. Is clear? So you can understand? स्टेटमेंट को ऐसे ही फ्रेम करते हैं, उससे ये भी पता चल जाएगा कि बेसिक पता है, करंट अपडेट है. So just in one or two statement they test you everything related to a topic. So is clear? आ गया समझ? So now ENT हमने क्या बताया था? Very good. Very good. Okay, good. And what I said regarding Vyom Mitra? Very good. Clear? ऐसे याद रखने हैं. And how significance is important for exam. Clear? So write about this. Write the first one. Nisar sends first radar image of Earth's surface. Write the first point. Nisar, NASA, ISRO, synthetic aperture radar, NASA, ISRO, synthetic aperture radar, comma, world first dual band, DUAL, dual band
write in bracket L band comma S band. L band comma S band. Close the bracket. SAR launched by PSLV, GSLV, launched by GSLV in sun synchronous orbit recently with the analysis of data collected. Analysis of data collected. The first, the first science result is released under which a radar imaging of Earth's surface, radar imaging of Earth's surface is made, which is significant for disaster management, agriculture, forestry, and Earth surface related studies. Okay. Come to the second. Astrosat completes decade of operation. Right in this first point, Astrosat, India's first and also unique multi-wavelength observatory launched by PSLV in 2015 in LEO have recently successfully completed 10 years of working and so far have revealed the most important information as globular cluster. Globular cluster. Okay, globular cluster. Underline is important for prelims. ये regular classes में notes में है ये. Clear? Just write in bracket. ये है क्या? Globular cluster. Collection of star systems. Collection of star systems having similar chemical composition and receives energy from ultraviolet source and tightly held by their own gravity. Tightly held by their own gravity. Okay. Write the next one, Vyomit.
is half female humanoid, half female humanoid humanoid robot designed and developed for test demonstration to India's first human space mission, Gaganyaan. Test demonstration to India's first human space mission, Gaganyaan. With the objectives to monitor entire phenomenon after the launch to Gaganyaan. Write the next one, ENT, put a tick mark. इसे टिक करने हैं ENT को. Right. Recently, astronomers have observed ENT event to the star systems very massive right in bracket almost 3 times the mass of sun. When such star systems comes in the influence of supermassive black holes, the act of tidal forces made compress the star systems, resulting into a thin shape from where electromagnetic radiations comes out. Electromagnetic radiation comes out, which is termed as ENT. Next one, ISRO agreement with Hall for transfer of SSLV technology. Right. It's significant in making available the SSLV more in numbers and also the technology transfer
to to other entities will boost the diversification, comma, commercialization in the space sector. Next, India's space economy report. Right. Recently, in a report released, it is projected that by 2033, Indian space sector will have five-fold increase by 2022, which is valued at 8.4 billion US dollar, will reach to 44 billion US dollar by 2033. Okay, write the next point. Regarding contribution in global space economy, regarding contribution in global space economy, which is at present 2%, will increase to 8% by 2033. It is also presented, एक और लाइन लिखने हैं, it is also presented that NSIL establishment in 2019, comma, in space, ये ऐसे लिखने हैं, in space, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, in space in 2020, and India's space policy 2023. 2023 will work towards achievement of such target. Okay, such target. Now write the last one. Pratyush, put a tick mark. ENT and Pratyush both are very much important for prelims. Pratyush, right. Is a radiometer which is developed to place in the lunar orbit
to observe the radio signals emitted from hydrogen atoms comma the data collected will be significant for studies related to evolution of universe just after the Big Bang. Okay. Come to the next topic, alternative sources of energy. This topic I think is completed by all of you. Anyone who has not completed alternative sources of energy? अच्छा नहीं complete. Yours? नहीं complete. Okay, first class है. Okay. Then how you have a little bit good idea about SSLV and all? Have gone through with video or what? Okay, very good. Okay, have to appear by 26, 27. Then it's good. Okay, try to be regular in the regular classes. Okay. So, और others का तो complete है. What is 2G biofuel? 1G biofuel, 2G biofuel, 3G biofuel क्या है? Almost all three are related to that. उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये तीनों इंफॉर्मेशन. क्या है 2G बायोफ्यूल? ओके, बायोफ्यूल क्या है? कितना इजी बताया था हमने. बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल जैव ईंधन क्या है? ठीक है, गुड. फ्यूल फ्रॉम बायो. और आगे? ठीक है. आई एम आस्किंग अबाउट बायोफ्यूल. कितना सिंपल हमने बताया था. सी आई हैव सेड ट्राई टू मेमोराइज एंड ट्राई टू रिवाइज द लेक्चर्स. इसे से याद रहेगा, नोट से याद नहीं रहेगा. नोट्स इज जस्ट मेंट ऑफ रिवीजन. क्लियर? सी हाउ सिंपल आई हैव सेड फ्यूल मेड फ्रॉम बायो. ठीक है. अब इस बायो के लिए एक तो बायो जो लिविंग फॉर्म में है. ठीक है, लिविंग फॉर्म में है जैसे प्लांट. ठीक है. एक तो बायो जो लिविंग फॉर्म्स में कभी रहा था, अब लिविंग नहीं है. क्लियर? उन सभी बायो को कॉल्ड एज वेस्ट. ठीक है. जैसे कोई प्लांट का सोर्स है, सीड्स है, अब वो लिविंग नहीं है. ठीक है. और लंबे टाइम में यही बायो क्या बन जाता है? फॉसिल. इसी आइडिया से तो बायोफ्यूल भी बना है. सिंपल. सो एक तो जो लिविंग सोर्स है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लांट, और दूसरा लिविंग सोर्स के वेस्ट. आई यूज द वर्ड वेस्ट बिकॉज प्रीलिम्स में मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड कि इसमें से कौन कौन सी वेस्ट यूज होती है या नहीं. ठीक है. सी अब प्लांट सोर्स के बारे में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की सीड्स को लेते हैं, एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर्स को बढ़ाते जाते हैं, जो लिक्विड आता है प्रोडक्ट उसमें से फैटी एसिड्स को निकाल लेते हैं. अब जो लिक्विड बचा फैटी एसिड निकालने के बाद उसकी मिनरल कंपोजिशन हमारी फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सिमिलर है. ठीक है. सिमिलर मिला तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? किससे सिमिलर मिला? इनिशियली हमें डीजल से सिमिलर मिला था.
तो हमने इसे कह दिया बायोडीजल। ठीक है, अब हमने यहां क्या देखा, वेस्ट के साथ भी हमने यही प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो लिक्विड आया वो डायरेक्टली कंपोजिशन सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये बना किससे है, वेस्ट से। तो हमने इसका नाम रख दिया बायो एल्कोहल। ठीक है, अब हमने बायो एल्कोहल में कार्बन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब देखा। फिर हमने क्या देखा, मिथेनॉल इज अ लिटिल बिट पॉइजनस, तो हमने प्रेफर किसे किया, इथेनॉल को, और इसी बेसिस पे इट इज सेड दैट द मॉडर्न इकोनॉमी विल बी इथेनॉल इकोनॉमी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये बना किससे है, वेस्ट से, सो इट विल नॉट सुटेबल टू यूज डायरेक्टली, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड कंसर्न दैट इज रेज्ड, that was also in recent news, that we'll be discussing later, just I am giving you one line idea. Ethanol is the bioalcohol that can be used with conventional fuels, मिला सकते हैं पेट्रोल के साथ, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। इस मिलाने को क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग पॉलिसी। क्लियर? सो वेरी सिंपल, बायोफ्यूल आर ऑफ टू टाइप, एक बना वेस्ट से, एक बना प्लांट या लिविंग सोर्स से। वेस्ट से जो बना उसे हम कहते हैं बायो एल्कोहल, उसे डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब अब इथेनॉल को हमें मिक्स करना होगा परसेंटेज वाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सेकेंड, जो लिविंग सोर्स से बना उसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडीजल। ठीक है, अब एक रिसेंट न्यूज वाज देयर, अब ब्लेंडिंग से फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीसेंट करंट। ब्लेंडिंग हमने शुरू किया, वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ, बट ब्लेंडिंग अब तक पेट्रोल के साथ हो रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैव रिसेंटली अचीव 20% ब्लेंडिंग, ठीक है, पेट्रोल के साथ E20, बट इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट देयर आर मेनी कंट्रीज हु हैव ऑलमोस्ट रीच्ड मोर देन 60-70% ऑफ ब्लेंडिंग। बट अब तक जो भी ब्लेंडिंग हो रही है वो किसके साथ हो रही है, पेट्रोल। रिसेंटली अ न्यूज हैव कम आफ्टर द रिसर्च दैट ethanol is not best suited for diesel engines. Even companies have projected so many issues with using ethanol in terms of maintenance to the diesel engine. So work is going on, uske liye it is proposed isobutanol. Clear? But still there are challenges associated. Clear? So far not approved. So ye current information hai isse related, that we'll see later on. Now अब ये बायोफ्यूल है, अब बायोफ्यूल बनाना कैसे है इज कैटेगराइज्ड, और उस कैटेगरी को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। क्लियर? अब जनरली फर्स्ट जनरेशन का मतलब है जनरली लिविंग सोर्स से बनाना, ठीक है। सेकंड जनरेशन का मतलब है वेस्ट से बनाना। थर्ड जनरेशन का मतलब है इज लाइक एल्गे और इस तरह का, जो अभी ज्यादा यूज में नहीं है। क्लियर? बट ये जनरली व्हाई आई हैव सेड, अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक ऑन 2 लाइन्स। साइंटिस्ट ने ये बता दिया, बट ये इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए, पॉलिसी। अब पॉलिसी में डिफरेंट कंट्रीज कम आउट विद डिफरेंट रेगुलेशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो 2018 में रिलीज किया, उसमें बायोफ्यूल को कैटेगराइज किया 1G, 2G, 3G। 1G में इसे रखा, ठीक है, 2G में इसे रखा, और इंडिया ने 3G में रखा कि जब हम बायो को मिक्स करेंगे CNG के साथ, जिस पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है। इज क्लियर? ये है इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ने 1G, 2G, 3G को ऐसे कैटेगराइज किया है। किसी और कंट्री की ये कैटेगराइजेशन कुछ और हो सकती है, बिकॉज यू नो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ये टेक्निकलिटीज है
और पॉलिसी इज अ मीन ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2G। रिकॉल द क्लास लेक्चर व्हाट आई हैव सेड। बायोडीजल तो हमें डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव मिल गया, लेकिन इस प्लांटेशन की एग्रीकल्चर बहुत ही चैलेंजिंग है, और अगर हमने पूरा किया देन ओनली वी कांट फुलफिल द डिमांड ऑफ डीजल और पेट्रोलियम। इसलिए ये बेस्ट जरूर है, बट पॉलिसी का इंटरेस्ट बायोडीजल नहीं है। पॉलिसी का इंटरेस्ट क्या है? इथेनॉल। क्लियर? सो इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पर है? 2G। अब इंडिया ने अपनी पॉलिसी में टारगेट रखा कि 2030 तक हम 20% करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर एडवांस दिस टारगेट बाय 5 ईयर, और ये अब अचीव हो गया है। बट इसके लिए हमें इथेनॉल की क्या चाहिए? सप्लाई। क्लियर? मींस एक तो इंडिया की पेट्रोलियम मेनली इंपोर्टेड है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ब्लेंड होगी, देन इट विल कम टू मार्केट। अब इसके लिए गवर्नमेंट हैव टेकन मूव्स। सी, ये तीनों रिलेटेड है। 2G इथेनॉल एक्सपोर्ट अलाउड। क्यों? क्योंकि अब हमने भी 20% अचीव कर लिया है। सेकंड, पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो इथेनॉल। सी, बैम्बू इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बट फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग बैम्बू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री। क्लियर? बट अब इंडिया का क्या रिक्वायरमेंट है? ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन, और ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। क्लियर? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली हैव रिमूव्ड बैम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्री। सो नाउ इथेनॉल कैसे बनाते हैं, दैट इज क्लियर टू यू। अब इथेनॉल को हम बायो से बनाएंगे, एंड दैट बायो इज बैम्बू, बिकॉज नाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्री। इससे you can understand additional income to bamboo plantation. Second, it will boost the supply of ethanol to increase the percentage. So PM inaugurates India's first at Golghat, Assam. Is clear? तीसरा इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड है। इथेनॉल सप्लाई ईयर में हमें टारगेट 20% के लिए इसे मेंटेन भी तो करने हैं टारगेट। इसका मतलब बिकॉज सप्लाई और डिमांड भी तो बढ़ती रहती है, इसका मतलब इस 20% को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल पॉलिसीज में सुगरकेन फार्मिंग और सुगरकेन के रेसिड्यूज मोलेसेस को और रिलैक्स किया है, और पॉलिसी में और रिलैक्स करके प्रोडक्शन इथेनॉल का अलाउड फ्रॉम अदर रॉ मटेरियल्स ऑल्सो इन दिस सप्लाई ईयर। हो सकता है नेक्स्ट सप्लाई ईयर में कुछ सुगरकेन जूस को हटा दिया जाए, बिकॉज इसे गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। बिकॉज अगर हम ज्यादा से ज्यादा सुगरकेन जूस को इथेनॉल में जाने देंगे तो माइट बी देयर कैन बी चैलेंजेस ऑफ सप्लाई ऑफ शुगर टू द मार्केट। इसलिए बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी इज मॉनिटरिंग दिस सप्लाई। अभी के लिए इथेनॉल सप्लाई ईयर 25-26 के लिए इज अप्रूव्ड। इज क्लियर? सो यू कैन अंडरस्टैंड ये तीनों इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क इन वन मल्टीपल। इज क्लियर दैट recently India started making 2G biofuel from a product which was once tree. Now you're getting the thing? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो राइट अबाउट दिस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो क्लियर है, 2G इथेनॉल एक्सपोर्ट अलाउड। ओके, second information, right in the second information, PM inaugurates India's first bioethanol plant. Right. In this plant, bamboo, BAMBOO, right in bracket, a bioproduct
once under the category of tree, now removed, close the bracket, can be utilized to produce ethanol at the place Golghat, Golghat, Assam. Golghat, Assam. Okay. Write the third. Right under this. इसमें लिखने हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, कॉमा 2018. National Policy on Biofuel 2018 expanded the scope of raw materials, for the production of ethanol with the approval of Biofuel Coordination Committee, the sugarcane juice, molasses are approved for ESY, ethanol supply year 2025-26. Okay, come to the defense technology. See, defense technology भी I think all of you have attended. Okay, except one or two. So first recall in defense technology what I have said regarding prelims. Prelims के लिए हमने important क्या बताए थे? UAV बहुत important है, clear? UAV एक emerging technology है. इस emerging technology का having significance in both aspect. और डिफेंस टेक्नोलॉजी का दो एस्पेक्ट क्या है? एक तो लड़ाई के समय लड़ाई करना, वॉरफेयर, एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन. क्लियर? यूएवी और ड्रोन is a newly emerging technology having significance for both. Clear? Second, बनाना भी आसान है, implement करना भी आसान है, and posing a challenges to air defense system. So you can understand. Having significance in many aspects, बहुत applications में. Recently, India have allowed that drone mounted radar systems. इसे सिंपल समझना है. बॉर्डर पे जो सर्विलेंस होती है, उस सर्विलेंस में ड्रोन माउंटेड रडार, ड्रोन्स में रडार लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव परमिटेड दैट बॉर्डर पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस टू बी परफॉर्म्ड. क्लियर? विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, इंटायर सर्विलेंस, इंटायर enemy locations, entire intrusion will be observed by drone mounted radar. Clear? अब ये question they will ask you in a question of drone. Drone we have discussed at a great length. ठीक है? Drone से related concept में they can ask you one thing, that surveillance can be performed by placing or integrating, ये वर्ड को नहीं यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग रडार सिस्टम्स टू ड्रोन्स. इज क्लियर? ये सिंपल है. इसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन, ड्रोन वॉल. ड्रोन आई हैव सेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी ड्रोन से रिलेटेड
आ रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी दैट इज नीड टू बी अपडेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल। एक नया कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है। इन दिस कॉन्सेप्ट AI powered surveillance system to counter any type of air defense system, और इसे कहा है ड्रोन वॉल। सिंपल। सो ये क्या है? AI पावर्ड सिस्टम है जहां ड्रोन पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को मॉनिटर करेगा, और अगर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नीड टू क्रॉस इट विल डिस्ट्रॉय। सिंपल। सो ड्रोन से रिलेटेड ये दोनों इंफॉर्मेशन नए हैं, करंट में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम। रिकॉल एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम केवल एक था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, BMD सिस्टम, बट आई हैव सेड coming of UAV have placed a question mark. So now entire world is working more and more to air defense system because अब के डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट में प्रोटेक्शन वॉर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इज क्लियर? रिगार्डिंग दिस, प्राइम मिनिस्टर हैव अनाउंस्ड मिशन सुदर्शन चक्र, which will be on the lines of like Israel Iron Dome, United States Golden Dome. On the similar lines, उसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम इज अनाउंस्ड। ठीक है, सो ओवरऑल ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है ये किसका पार्ट बनने वाले हैं? मिशन सुदर्शन चक्र, दैट विल बी इंडियाज कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम। सो उसके पार्ट में एक एयर डिफेंस सिस्टम है अनंत शस्त्र। अब ये है क्या? is a quick reaction surface to air missile which will be targeting 30 kilometer of air defense. Is clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट है because India, we have discussed in defense technology that recently India have started export and working on export potential to defense technology. ये ट्रेंड इंडिया में नहीं था। सो ऑन टू लाइन्स यू हैव रिटन अ मेंस क्वेश्चन आल्सो, एंड आई हैव सेड टू अंडरलाइन आल्सो इंडिजिनस एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। याद है? ये दोनों स्टेप इंडियन गवर्नमेंट के न्यूली टेकन स्टेप्स हैं। क्लियर? प्रीवियसली वी वर नॉट वर्किंग टू एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू दिस एक्सटेंट, एंड वी वर मेनली डिपेंडेंट टू फॉरेन नेशन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। Is clear? अब इस डेवलपमेंट में you can understand how far we have gone. That defense minister have inaugurated first overseas defense manufacturing plant in Morocco. और उस प्लांट में ये बनाना है is a infantry vehicle that will be made. Is clear? नया कॉन्सेप्ट भी है, और इसमें नया क्या है? इंडिया की ये फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, which is inaugurated by defense minister recently. Is clear? See this one. See the full form: maritime autonomous surface ships. Clear? See, ship क्या है पता है? Naval ships that are used for defense technology operations. Clear? Ships work on surface और अंडर वाटर ऑल्सो। क्लियर? सरफेस वाले शिप्स को जनरली हम क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में INS है, अंडर वाटर को क्या कहते हैं? सबमरीन्स कहते हैं। क्लियर? तो सरफेस शिप, ये दोनों वर्ड तो क्लियर है। शिप्स वर्किंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर? ऑटोनोमस का क्या मतलब है? हाँ, वेरी गुड, सेल्फ ड्रिवन। ऑटोनोमस मींस इस तरह की शिप एक नई टेक्नोलॉजी की शिप्स है। इस नई टेक्नोलॉजी की शिप्स में ह्यूमन इंटरैक्शन को हम शिप के साथ कम करते जा रहे हैं। क्लियर? 4 डिग्रीज में ऐसी शिप को डेवलप करना है। सो वेरी सिंपल, डिग्री 1 टू डिग्री 4 क्या होगा? ह्यूमन इंटरैक्शन कम होगा। दैट इज वेरी सिंपल। शिप्स की वर्किंग
को हमें वहां तक ले जाना है, इट विल बी समथिंग लाइक ड्राइवरलेस शिप, एवरीथिंग विल बी ऑटोनोमस, मिसाइल भी लॉन्च करने हैं ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, डिसीजन मेकिंग ऑटोनोमस, इज क्लियर। बट ये न्यूली स्टार्ट है, इंडिया ने भी इस पर वर्क करना स्टार्ट किया है, क्लियर। सो वेरी सिंपल, सरफेस शिप्स के केस में एक नया कॉन्सेप्ट आया है ऑटोनोमस का, ऐसे शिप्स को हम कहते हैं मास, क्लियर। अंद्रोत क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इसके पहले कौन सा लॉन्च हुआ था? अर्नाला, ये दोनों नोट्स में भी है, ठीक है। अर्नाला विच इज नेम्ड हैविंग सिग्निफिकेंस टू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स, और अंद्रोत इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द आइलैंड इन लक्षद्वीप, इज क्लियर। तो आगे समझ, ड्रोन की दो नई टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, क्लियर। सेकंड, एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया का वर्क कहां चल रहा है? मिशन सुदर्शन चक्र में, उसी में एक और एयर डिफेंस सिस्टम इज रिसेंटली अनाउंस्ड, ठीक है। ये इंडिया का पहला ओवरसीज प्लांट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, और इस प्लांट में एक नई तरह की व्हील्स आर्मर्ड एक इन्फेंट्री व्हीकल बना रही है, टैंक की तरह, ठीक है। ये नई तरह की शिप न्यूज में थी, और ये ASW SWC को इंडक्ट किया गया है, इसलिए सो राइट। Right, the first one, drone mounted radar system, right? Recently BSF deployed this system for overall surveillance to India's eastern and western borders without crossing the border. Right, the second one, Anant Shastra Air Defense System. Right, is a, write the capital word QRSAM, quick reaction surface to air missile of the range 30 kilometer, 30. Okay. Third, Agni Prime. Recently is tested on a mobile platform, on Indian Railways network, comma, having range of 2000 kilometer, comma, is upgraded to take place of Agni 1, Agni 2. Agni 1, Agni 2. फोर्थ को टिक करने हैं, राइट। is a AI drone wall, is a AI based platform
AI based platform of air defense system. Recently was in news as EU, European Union, is working to develop this. Okay, next one. Recently, Defense Minister inaugurated Defense Minister inaugurated first overseas defense manufacturing plant in Morocco, where where armored, ये वर्ड लिखने हैं, armored infantry vehicle to be developed. Write the sixth one. Right, are the surface ships which will work on less human interference. According to less human interactions in its operation, less human interaction in its operations are categorized into 4 degrees of operation. 4 degree of operation. Okay. Write the last one. Is ASW, SWC, anti-submarine warfare, shallow watercraft, comma, indigenously developed and inducted after Arnala. Okay. Now come to this information and communication technology. ये भी टॉपिक हो चुके हैं. ICT. You can recall when I was discussing communication technology generation, 4G, 5G, 6G, वहां हमने कुछ बताया था इससे रिलेटेड. इंडिजिनस क्या? वेरी गुड. हाँ, और क्या था? सी, we have discussed, what is the generation. Technically, technology का generation क्या है? Is clear? But in the entire technology generation development, when one new generation comes, as the process of utilization is by electronic device called mobile phone, so the same device is also upgraded when a new technology comes. Doing so, both manufacturing sector gets affected or upgraded,
by coming of one new system. अब तक क्या ट्रेंड था? When a new system comes, 3G, 4G, 5G, 6G, developed countries are the one who first introduce such system, completes the test of this system, and launches this. Accordingly, the chips are configured in the newly manufactured electronic devices. So you call it as 5G phone, 6G phone accordingly. Now, in the entire networking, since 3G onwards, because you know 3G is the first network where all communication applications were possible. Is clear? So, regarding 3G, mainly advancement in communication technology generation started. But in the entire testing of equipments, implementing the technology, India so far completely dependent to foreign nation for the same. So recently government of India, as now 5G is the most advanced technology, so when India rolled out 5G services, it was worked out that unlike the previous networking, we will first work indigenously to develop the technologies for both testing and implementation. So there have started the first work of indigenous development in 5G networking. क्लियर? इस डेवलपमेंट के होते ही शुरुआत में ही इंडिया रोल्ड आउट 5G सर्विसेज. क्लियर? सो जस्ट थिंक 5G के आने से इंडिजिनस वर्क हैव स्टार्टेड. सो 4G almost now have become, not say outdated, but have become a thing not much more in demand because 5G have come. So entire 4G network India have made indigenous. Clear? 5G पे काम चल रहा है. And what is so far most advanced? Most advanced is the 6G. So for 6G, as government of India have announced that by 2030, with entire work on indigenous development, it will be deployed. Is clear? इसलिए ये वर्ड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग सिस्टम में. क्लियर? ये एक प्रोसेसर है. नाउ इंडिया हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट्स ओन सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट. सो इंडिया हैव रिसेंटली डेवलप्ड दिस व्हिच इज प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर इन सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, एंड इट इज सेड that in the launch vehicles, now India will use its indigenous processor, which is also advanced, that can allow the launch vehicles to work in extreme weather conditions as well. Is clear? इसलिए एग्जाम में ये इस वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है. एक तो इंडिजिनस है और सेकंड इससे इंडिया की लॉन्च व्हीकल्स अपग्रेड होगी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए भी. इस क्लियर? So write about this. अभी recently 264 processor भी launch हुआ था इंडिया में. हाँ. वो 60 सी जैसे प्रोसेसर का वर्क तो हमें हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, बट इस प्रोसेसर का वर्क है लॉन्च व्हीकल में. क्लियर? उस प्रोसेसर को भी हम डेवलपमेंट फेज में हमने रखा है. दैट इज हैविंग सिग्निफिकेंस फॉर मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, बट वंस इट विल बी अलाउड, इट विल हैव इट्स सिग्निफिकेंस इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स. अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स में एयरप्लेन में यूज करेंगे कि कहां करेंगे, दैट विल बी अनाउंस्ड. ओके, सो राइट द फर्स्ट वन. फर्स्ट तो न्यूज हो गई. क्लियर? राइट इन द फर्स्ट न्यूज. रिसेंटली इंडिया रोल्ड आउट 5G services for the indigenous development of which 5G test bed, 5G test bed BED, to test and validate 5G technologies, indigenous development have started, and
and it is announced that by 2030, with indigenous development, 6G will be launched. Okay, write the second one. Is a 32-bit indigenous processor developed and presented to PM in Semicon India Conference 2025, Semicon India Conference 2025, which is a remarkable achievement in semiconductor development and will find its applications in launch vehicles, which will even suit for extreme weather conditions. Okay. Under AI, just write this news. It will be clear to you in the AI topic. You just take line information. Ministry of Electronics and IT announced 500 data labs under India AI mission. Okay. और बायोटेक्नोलॉजी के ये दोनों टॉपिक जस्ट राइट. Okay, one line about each. It will be clear to you when I'll be taking the biotechnology lectures. Okay, right. For this is a multi-stage Adfalcivax vaccine. Is a multi-stage malaria vaccine licensed to private players in India. Write the second one. mRNA vaccine. This vaccine recently developed for cancer have found its significance in tumor mutation. Okay, ये regular classes में clear होगा. Okay, because for this you need to know many such things.